they make money by threatening the people. Either you pay or you will do a challan. So, e-challan mein what is your demand? Overloading बंद करो. रिमूव ई चलान 64,000 करोड़ ई चलान के ऊपर पेनाल्टी लगा के इसको सरकार सीरियसली लुक आफ्टर करना पड़ेगा। बहुत बड़ी समस्या हमारे ग्रुप में क्लीनअप नहीं है गाड़ी पर, तो 1,500 रुपये का आपको जुर्माना लगता है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आज क्लीनर की आवश्यकता नहीं है। Good morning, friends, and welcome to a very special episode of Trans India. Real people, real emotions. The road transport industry somehow finds itself in a pool of troubles. Call it karma or whatever else, but there hasn't been a phase where the industry has been without any major issues to deal with. In many cases, some issues are still seeking a solution even after decades of discussion. In this episode, we feature three prominent members of All India Motor Transport Congress, one president and two former presidents. All three of them have been very dedicated towards the trade and have been devoting maximum time and effort in their respective domain to address the concerns of the transporters and trekkers. We have with us today Dr. Harish Sabharwal, President AIMTC, Dr. G.R. Shanmugappa, Chairman AIMTC, and Malkeet Singh Bal, former President AIMTC. It may also be noted that AIMTC is preparing for a nationwide strike to address certain industry issues. And giving us more details on the same is the President himself, Dr. Harish Sabharwal. Harish, last 2-3 हफ्तों से you've been traveling to various cities, and usually if an all India president is traveling, इसकी दो वजह होती हैं, या तो इलेक्शन होता है या स्ट्राइक की तैयारी होती है. What are we looking at now? To the utmost extent you are right. दो ही वजह होती है, but अभी इलेक्शन में 1 साल है, तो so that I am comfortable. But your second reason is very valid. We are roaming around the cities and हम लोगों से बात कर रहे हैं कि हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम का प्रॉब्लम्स तो बहुत है हमारे ट्रेड में. आई मस्ट शेयर विद यू कि बट ऑन द टॉप ऑफ एजेंडा अभी हर एक सिटी से एक प्रॉब्लम आ रहा है, ई चलान्स. It has now really become a cancer for our trade, I must say. But people are crying like anything, and government is not listening to us in any of the ways. So I think we will be left with no other option but to go for agitation across India if government will not listen to us anymore. So, e-challan mein what is your demand? So what the people have made the rules, the implementing authorities are making a mockery of it. They have taken all undue advantage out of that by misusing the methods, by issuing the challans in an unjustified manner. Your vehicle is plying in Odisha, they will issue a challan in Chandigarh. Right. Or what one more else a very important factor that is totally unjustified, and it's I must say height of injustice to our drivers and our operators. They will ask money, extortion on the road. If you refuse to pay, they will click a photo by their mobile, which they are not supposed to do. Mobile phone is not that instrument which is, I may say, which is approved by judiciary or in their system. Right. So, secondly, they make money by threatening the people. Either you pay or you will receive a challan. And in some cases, when drivers pay 5,000, 500,000, whatever they are capable to pay, even then they issue a challan. So now government is very, you may say, adamant on this, and unjustifiably they have given a targets, especially Rajasthan and MP. They have given a target to all the inspectors. Okay, you are in a social system. It is a democratic setup, democratic country we are living in. We are also citizen. You cannot make any police inspector responsible for 10 murders a day. It's your target. How can you do this? The same is with that our traffic problem. How can you fix a target of an inspector or DTO or RTO that you go on the roads and put Collect X amount or Y amount? Why it is so? Otherwise also these officers who are supposed to regulate the traffic,
They are not regulating. They are now acting as revenue officers. They are earning money for either government or for their own pocket, I must say. Actually, the focus should be on reducing accidents, Yeah, not yeah. on collecting It's money. They've actually it's lost really, the plot. it's really unfortunate to share, but it is a fact, admitted fact that we are on top of the house in the world on two things. First, population. Second, road accident. Thirdly, deaths on road due to accidents. There are also 175 lakhs or something. Correct. Yes. It's a really horrible figure, I must say. But what to do? This is not the way. But the way police have come on the road and they are issuing challans unnecessarily and grabbing the money, it's not acceptable. But tell me, before going into the strike, have you talked to the government on this? Yeah, we have talked to the government. Only warning giving is pending, but we will. I think we will be in a position in Delhi. When I will be in Delhi, we will call a PC. After that press conference, the open date to the government, then we will go on strike, and we will go on strike with the consent of people across the country, with the consent of our operators across the country. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस स्ट्राइक को थोपना नहीं चाहेगी कि हमने बंद कमरे में बैठ के स्ट्राइक कर दिया, आप लोग गाड़ी खड़ी कर दो. लोग इतना दुखी और तंग हो चुका है कि लोग अपना आप गाड़ी खड़ी करेगा. वो गाड़ी चलने लायक ही नहीं रहेगा सड़क पे तो कैसे चलाएगा? They will not be in position to ply the vehicles on the road. I must tell you this. And secondly, the toll tax. The second agenda which has come for pop up by the people, it is toll tax. Okay. आपका टोल टैक्स का मियाद पूरा हो गया, आपका रोड 10 साल चल गया, 10 साल में पैसा हो गया, 40% पे लाओ ना. उसको क्यों नहीं लाते? केरला हाईकोर्ट और 2 हाईकोर्ट ने और ऑर्डर दिया है, जिधर रोड नहीं है, खड्डा वड्डा है, सब जंपिंग है, उसका टोल बंद करो. yes. क्यों नहीं सुनता? वो 10 सेकंड 20 सेकंड वाला भी लॉ है, उसको भी नहीं सुनता. तो गवर्नमेंट इज सो प्रो दिस पीपल फेल टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट. But in Harshi, from past experience, it has been seen कि All India जब strike पे जाती है, it usually comes back with written assurances जो कभी पूरे नहीं होते. And इसमें जो मरता है more और ज़्यादा जो छोटा operator है, he is in a lot of mess. I do agree. How do you, will you take care of these Yes. things? Yes, of course, we will take care, and you will notice that you may notice that things have changed. We will not go the way the past was going on. We will make a body throughout the country, and we will have an indoor meeting. Then we will have PC. Then we will go to government with the letters and all things with verbal requests or discussions. If we are failing getting anything, then it will be a complete chakka jam on the roads of India across the country by all the operators in all corners of India with their willingness. And when something you do with willingness, you must achieve something. You will be achieving the targets. Because हमारा गाड़ी वैसे भी चल नहीं सकता है. हमारा पोजीशन बहुत खराब हो चुका है ट्रांसपोर्ट का. एंड गवर्नमेंट हमको बैकबोन बोलती है, बट दे आर नॉट लिसनिंग टू अस. हम बैकबोन तो हैं. जब हमने कोरोना में गाड़ी चला दिया था, तब तो गवर्नमेंट कह रहा टोल भी माफ है, चलाओ. क्योंकि हम कैरी करते हैं 79% जितना गुड्स है उसका हम कैरी करते हैं 79% को. तो गवर्नमेंट को ये मालूम होना चाहिए, जब इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसके साथ इतना अनजस्टिस हो रहा है, हम कोई ज़्यादा डिमांड लेके या कोई उनको ब्लैकमेलिंग थोड़ी कर रहा है. दीज आर आवर जेन्युइन डिमांड्स. यू प्लीज लुक इनटू इट एंड सॉर्ट इट आउट. व्हाट एल्स वी आर आस्किंग टू देम. And I think not only trucks, लेकिन जो कार ओनर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक परेशान है. साहब बहुत परेशान है. देखिए ना अभी राजस्थान क्या कर रहा है. दे हैव रिफ्यूज्ड टू put these luggage carriers on the roof. Okay, as far as bus is concerned, we do understand that if luggage carrier is not allowed, as you are afraid of this कि वो सामान ढोएंगे, वो कार्गो लेंगे, ठीक है, remove it from the buses. But why from Urbania, Tempo and Krista? There are where the commercial vehicles, where those tourists will go. Yes, sir. If you are in a group of 4 people with your family, you want to visit Udaipur, Mount Abu, there are so many places in Rajasthan. Correct. How will you go? Tell me. Without keeping your luggage on the roof, there is no space in the Krista or Urbania or Force Motor, this Tempo Traveler. There is no space for the luggage. So these are the things which we are facing impractically. And we have approached our Honorable Minister of Tourism, Shekhawat Sahab also. He's a little busy in this election with this Assam side and Calcutta side election, West Bengal. So when he'll be back, he has promised us to, he will sit with us and we'll sort out it amicably. Let's hope. But
दिल्ली इज नॉट सो फार, अगर वो आ जाते हैं और बात नहीं बनती है तो वी विल लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन टू गो फॉर अ चक्का जाम, बट आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग एंड लेटर्स टू गवर्नमेंट। एंड जब तक मेरा ये पूरा टूर पूरा हो जाएगा, सभी देशों में, प्रदेशों में, सभी जोन्स में हम बात कर रहे हैं और हम मन बना रहे हैं। अगर लोग मन बना के बैठे हैं कि हम नहीं चल सकते और हमको गाड़ी रोकना ही होगा, तो डेफिनेटली वी विल डू दिस। और वो पिछली बार की तरह नहीं होगा, किसी आश्वासन पे बात नहीं होगी, गाड़ी तभी सड़क पे उतरेगी जब इन राइटिंग ऑर्डर हमारी फेवर में आ जाएगा। ये आर पार की लड़ाई होगी, आई मस्ट अश्योर यू दिस। Hariji, since you spoke about luggage on buses, as you've been a bus operator for the last few years, what is your stand on buses carrying cargo? Should that be allowed? No, not at all. It is intolerable. We will not tolerate. We are with government on this step. Buses are not meant or made for this. But government is not with you on this step also. गवर्नमेंट मेरे को कभी कभी लगता है गवर्नमेंट प्लान कर रहा है अपना गाड़ी को, बस को ट्रक बनाने का, गवर्नमेंट भी प्लान कर रहा है। हमको ऐसा लगा एक दो मीटिंग्स में कि जब ट्रक्स इतना है, उनके पास काम भी नहीं है और तुम बस को बोल रहे हो लगा ही ले जाओ, तो फिर ट्रक को भी बोलो ना पैसेंजर ले जाओ। तो फिर मोटर व्हीकल एक्ट में डेफिनेशन का तो कोई मीनिंग ही नहीं रह गया ना। तुमने बस डिफाइंड है, बस इज फॉर कैरिंग पैसेंजर्स ओनली, यू हैव अलाउड, किसी भी उसमें अलाउ कर दो, क्यों कर दो। हम लोग नहीं है, देखो ड्राइवर कंडक्टर को या मालिक को, बस का मालिक कोई भी हमारा दोस्त है, उसको अपना खाना कमाना, उसका रोटी रोजगार है, सिस्टम उसको जिस लाइन पर डालेगा वो उस लाइन पर जाएगा। अगर आप कल जो बस निकलता है सामान लेके, उसको इमीडिएट 3 महीने के लिए बंद कर दो और उसका 1 लाख 10 लाख का चालान कर दो, अगले दिन सामान बंद हो जाएगा। बट यू हैव टू बी विद स्ट्रिक्ट नॉर्म्स। अगर तुम बोलेगा अच्छा तू लिया है सामान, ले जाना था, चालान करूंगा, 10,000 दे और निकल जा, तो वो सिस्टम में वो 10,000 का कॉस्ट अपना ऑपरेशन कॉस्ट में इंक्लूड कर लेता है। वो सिस्टम में हम लोग को रमा करता है और पैसा दे देकर सड़क पे चल रहा है। एक 2,000 किलोमीटर का रूट चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? विद द मिली भगत ऑफ गवर्नमेंट एंड दीज आरटीओ डीटीओ एंड ट्रैफिक पुलिस ओनली। हमारा तो रोजगार है, हमको तो बोलेगा तुम डेड बॉडी ले जानी अलाउड है, तो ये साला डेड बॉडी भी लेके चल पड़ेगा। वो तो पैसा चाहिए, क्यों? किस्त देना है, बीमा भरना है, टायर डालना है, ड्राइवर को सैलरी देना है, परमिट का पैसा भरना है, 3 महीने वाला टैक्स भरना है, साल वाला भरना है, कैसे करेगा? ऑपरेटर तो समझ लीजिए हेल्पलेस है। लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम अपने नॉर्म्स, अभी क्यों नहीं होता ये सारा काम सिंगापुर में? जाते उधर बार बार देखने, अब यूरोपियन कंट्रीज में जाती है हमारी गवर्नमेंट, हमारे लीडर्स क्या क्या फॉलो करते हैं, उधर क्या देख के आते हैं, उधर देख के है ना ऐसे सामान अलाउड है क्या? बस पे ट्रॉली चलता है साथ में, बॉस ट्रेलर चलता है साथ में। तो देयर इज अ मीटिंग नेक्स्ट वीक विद मॉर्थ, वी विल बी गोइंग इन राइटिंग विद दिस सजेशन दैट फिक्स। अभी तक लॉ क्या कर रहा था, आज तक भी बस में टूरिस्ट के सामान का केजी फिक्स क्यों नहीं है? Let us ask the government why they are sleeping on it. But Hariji, considering bus ho ya truck ho, our operating costs are going up. Yeah, day by day it is increasing. How can the industry keep pace when it comes to the freight structure? Because Sir, this does not allow chori to anyone. अब चोरी करके मैं चोरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट एज एन एसोसिएशन कैन यू एटलीस्ट एडवाइज द मेंबर्स कि आप अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर से हिसाब से करो, बिकॉज कंपटीशन इज गेटिंग रियली बैड। Yeah, but I think as far as trucks are concerned, we are facing a bad time. But buses वाला अभी भी अपना कैसे तैसे काम कर रहा है और they are not facing such a bad time. क्राइसिस नहीं बट क्राइसिस नहीं है उसमें। बट ट्रक्स में एक तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम है। डिमांड एंड सप्लाई में वी आर ऑन द है। नेगेटिव ये साइड। सालों से ये चला सालों आ रहा में है। सालों। हाउ डू वी गेट सर वी विल हैव टू स्टॉप द ओवरलोडिंग एट वंस। बट ओवरलोडिंग आई थिंक काफी हद तक तो बंद हो गया है, जो पहले होता था। गवर्नमेंट अपना काम नहीं करती है। हमको ये अफसोस है कि सभी कोर्ट, सभी लॉ, सभी मॉर्थ का डिपार्टमेंट हमारे लिए बना है, लेकिन गवर्नमेंट में कहीं पर फेलियर, इतना बड़ा फेलियर है। जैसे एक बसीन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जिसमें ये बोला गया, 2 बार आया वो जजमेंट, 2005 में भी आया, 2019 में भी रिपीट हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट। क्यों? उसने जब बोला कि जो भी सामान आएगा ओवरलोडिंग का या जो भी गाड़ी आएगा, वो उतारा जाए, गवर्नमेंट सामान को उतारेगा और अपना यार्ड में, यार्ड बनाया इन्होंने कहीं पे। बट टेल मी, ओवरलोडिंग से नुकसान हमारा हो रहा है, कर भी हम रहे हैं, then why are we dependent on the government to control us? क्या as an association or as an industry are we not strong enough to say कि भाई हमारा नुकसान है, our operating cost goes up, our expense goes up? You see, in every segment or in every व्यापार or business you can see there are a lot of associations associated. They are leading their trade respectively. But आप कहीं पर भी ये बेईमानी चोरी किसी ट्रेड में नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। ये इंडिया है, इसमें सब कुछ चलता है और वो चलने को जितना कम कर सकते हैं वो प्रयास हमको करना होगा और हम कर रहे हैं।
हमने लोगों को एजुकेट किया, हमने इसके कैंप्स लगाए, हमने इसकी जोन वाइज मीटिंग्स करी और हाथ जोड़ के भी बोला, गुस्से से भी बोला कि ओवरलोडिंग बंद करो। जब तुम ओवरलोडिंग बंद करेगा, जिसका भाड़ा तुमको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, तो तुम्हारा 2 की जगह 3 गाड़ी लोड होगा, तो तुम्हारा गाड़ी को काम मिल रहा है। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इसमें नुकसान उनका अपना ही है। यू आर राइट दैट वे, बिकॉज हमारा जरूरत तो हमारी है, हाँ जरूरत हमारी है। बट हमारे ऑपरेटर भी तो 70% इलिटरेट है ना, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। हरीश जी, गोइंग फॉरवर्ड, अभी आप स्ट्राइक की तैयारी में तो आप लगे हुए हो, बिल्कुल लगे हुए हैं इंडस्ट्री का फ्यूचर हाउ डू यू सी? मैंने आपसे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था, एंड सर। You are very much right and I appreciate your gesture, sir. First of all, we are before the government with a request, you please make a transport policy for Indian operators. There is no transport policy at all. Since back, हम पाकिस्तान के ज़माने के ऑपरेटर भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। 50 साल मेरी फैमिली को हो गया, 60 साल हम अभी 60 ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको कब क्या, किसका लाइफ कितना है, कौन सा गाड़ी का क्या लाइफ है, कौन सा फ्यूल कब तक चलेगा, यू नेवर नो इट। इट इज़ ऑल ऑफ सडन इट कम्स ओवरनाइट चेंज होता है। ओवरनाइट चेंज होता है। तो हमारा फ्यूचर बड़ा डार्क में है जब तक ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं आती। और फिर वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं। वन नेशन वन टैक्स मीन्स पहले आप तो फॉलो करो, सरकार तो फॉलो करे। आप अभी स्टेट्स को हम देख रहे हैं मौत में रोते हुए, स्टेट्स कह रही हैं कि हमारा टैक्स चोरी हो रहा है, हमारा इंदौर का आदमी या एमपी का आदमी नागालैंड में गाड़ी रजिस्टर करा रहा है, एग्जाम्पल। हमारा बॉम्बे का आदमी चंडीगढ़ में गाड़ी रजिस्टर करा रहा है, दिल्ली का आदमी दमन दीव में गाड़ी रजिस्टर करा रहा है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज टैक्स इज नॉट रैशनलाइज्ड टिल डे। आप अब उधर टैक्स 6,000 है, इधर 20,000 है, तो 14,000 जिसको हर महीने बचता है उसका तो ड्राइवर का सैलरी निकलता है, हेल्पर का सैलरी निकलता है, वो तो जाएगा। तो तुम ऐसा मौका क्यों दे रहे हो? तुम पहले गवर्नमेंट अपने आप को ठीक लाइन पर लाए, इनको रैशनलाइज करे, सभी का रोड टैक्स एक बराबर कर दे। देखो कोई भी किसी, अच्छा फिर वो गाड़ी रजिस्टर कैसे हो रहा है जब मेरा आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी दिल्ली का है, तो दमन दीव वाले क्या देख के गाड़ी रजिस्टर कर रहे हैं? It means duplicate papers. Duplicate paper means 420 with the government, and government has closed the eyes. Is encouraging that. But talking of uniform tax, Harish, do you also think that diesel needs to have uniform pricing across India? That will help the industry. As far as our trucks are concerned, it should be. It must be, I must say, because हमारा पूरा ऑपरेशनल कॉस्ट हिल जाता है। 4 रुपए पर लीटर का फर्क आ जाता है क्या जोन वाइज चेंज करने में। तो हमारा सारा ऑपरेशनल कॉस्ट जो भी कैलकुलेशन होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए 2-3 चीज़ें हैं। हम कभी नहीं बोलते डीजल का प्राइस कम करो, इट इज़ गुड फॉर नथिंग। फिर बोलना भी बेकार, वो बेकार हो गया, अभी बोल के बेकार हो गया। टोल भी हम नहीं बोल रहे कम करो, हम तो बोल रहे हैं हमसे एडवांस ले लो, पूरा ले लो। प्राइवेट गाड़ियों को आप फ्री कर दो, जितना टोल आपका बनता है उससे ज़्यादा हम भर रहे हैं, क्योंकि आप टोल को नियमित तरीके से नहीं ले रहे। अभी आप टोल को ले रहे हो, आप 6 गुना काट रहे हो। आपके पास लॉ क्या कहता है, आपका MOU क्या कहता है? 2 गुना मैक्सिमम। आप 6 गुना, राजस्थान के हर बैरियर पर टोल पे 6 गुना का पर्ची हो, तो रसीद भी नकली दे रहे हैं हमारे हिसाब से। बट गवर्नमेंट हैज क्लोज्ड आइज। तो गवर्नमेंट कुछ करेगा तो हम लोग कुछ कर पाएगा ना। एसोसिएशन इज नॉट अबव द गवर्नमेंट, I mean to say. I mean, you can only represent to a certain extent. We can represent, we can raise our voice, we can convince them, but the action should be taken by at their end. I'm sure. Thank you so much. Thank you. And best of luck. Let's see where does the strike go. Yeah, no, let's see. I think it will not take. It will take a couple of months more at the most, and July, August we will be on the roads. If government do not listen to us, very frankly said, what the reason, what the result may be, but we will be on the roads. Thank you, Harishji. Thank you. If Rags to Riches had a brand ambassador, Dr. G.R. Shanmugappa would be a front runner for that. However, he still hasn't forgotten his roots and still travels across South India seeking solutions to problems of the truckers. And he has taken a task on hand. Telling us more about the issue is Dr. G.R. Shanmugappa, but on the other side of this very short break. You are watching Trans India, Real People, Real Emotions. मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी पीके ट्रांसपोर्ट ने 300 नए ट्रक खरीद लिए हैं। यस। लेकिन सर, हमारी कंपनी ये ट्रक बेच कब रही है? क्या? सर, मैं ट्रांसपोर्ट टुडे से हूँ। मार्केट में खबर है कि आपने 300 नए ट्रक्स खरीदे। हाँ। तो सर, ये ट्रक्स आप बेच कब रहे हैं?
कॉन्ग्रेचुलेशंस कुमार साहब, 300 ट्रक लिए हैं आपने, बधाई हो। तो बेच कब रहे हो? अरे भाई, हर कोई मुझसे ही क्यों पूछ रहा है कि मैं अपना ट्रक कब बेचूंगा? आपने भी तो ट्रक लिए हैं ना, आपसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि आपने खरीदे ही हैं बेचने के लिए, तो लोग तो आप ही से पूछेंगे ना। मतलब ये कि मैंने खरीदे हैं महिंद्रा ब्लेजो, जो दे ज्यादा कमाई पहले दिन से साल दर साल, और ये दे किसी भी और ट्रक के मुकाबले 10% ज्यादा माइलेज, सर्विस और स्पेयर का खर्चा सबसे कम, 2 सर्विस गारंटीज और IMAX टेलीमेटिक्स का भरोसा। तो कुमार साहब, मैंने ट्रक बेचने के लिए नहीं, I mean रीसेल वैल्यू के लिए नहीं, प्रॉफिट वैल्यू के लिए खरीदे हैं। क्योंकि अब रीसेल हुआ पुराना, पहले दिन से प्रॉफिट कमाने का है जमाना। तो कुमार साहब, सोच बदलो, तकदीर बदलेगी। महिंद्रा ट्रक एंड बस, सोच बदलो तकदीर बदलेगी। Welcome back to Trans India. Real people, real emotions. Here's our interaction with GRS, also known in the industry as Guruji. VLTD के इशू में सेमटा ने अभी गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजा है, डिमांड भेजा है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये बताइए। बहुत बड़ा बीमार है। सरकार क्यों ऐसा करता है हमको समझ में नहीं आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट दूसरा स्टेट वाला पैसा लेके, मैन्युफैक्चर छोटा मोटा मैन्युफैक्चर का पास पैसा लेके स्पीड गवर्नर इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद व्हीकल में फिट हो के आ रहा है। बाद में 80 किलोमीटर को ऊपर रोड में 100 किलोमीटर तक जा सकता है कर कोई एक्सप्रेस हाईवे में देने के बाद वो जरूरत नहीं करके बोल रहा है। क्या तमाशा हो रहा है। करोड़ ऑफ रुपीस स्पीड गवर्नर स्पीड गवर्नर वाला पैसा दे के सरकार को लूट लिया स्टेट गवर्नमेंट को। VLTD का मेजर प्रॉब्लम अभी आ गया। अभी लास्ट 6 महीना पीछे VLTD इंट्रोड्यूस किया निर्भया केस में, 2012 में निर्भया केस में। राइट। ये पैनिक बटन VLTD जरूरत है कर को सरकार बताया था पैसेंजर व्हीकल के लिए। करेक्ट। वो जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो लोग फिट करना कर को बोले के बाद फर्स्ट गवर्नमेंट बस को फिक्स करना, नहीं प्राइवेट को फिक्स करना। प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल को फिट करने के लिए सोचा, हम कुछ भी बात नहीं किया वो टाइम में। अभी क्या किया, कमर्शियल व्हीकल एंड बसेस प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल करके फर्स्ट लिख के भेज दिया। अभी क्या किया, उसका अबेंस में रखा 3 महीना। अच्छा। कमर्शियल व्हीकल का अभी इंट्रोड्यूस करता बोलता है, अभी ऑलरेडी चिट्ठी आ गया। ये इतना वरस्ट कर दिया। ये अबेंस में रखा था कि आपको टाइम दिया था फिट करने के लिए? नहीं, अबेंस में रखा था, बाद में टाइम 3 महीना देता करको उसका वर्ड बदली कर दिया। 3 महीना करको टाइम दिया। आपको टाइम दिया क्या फिट कर लो? फिट करना पड़ेगा, कमर्शियल पड़ेगा। हाँ। बिगिनिंग से हम विरोध करके आया। ऑल ऑफ द सडनली ये पावर वाहनपुर में आया करके ये लोग क्या किया, वहां कंट्रोल कर दिया। अभी क्या हो गया मालूम है, एंटायर कंट्री में गाड़ी रुक गया। अभी कौन सा गाड़ी नेशनल परमिट व्हीकल है ना, ये व्हीकल्स ऑफ अदर स्टेट में गया, इसका परमिट रिन्यूअल नहीं किया, वाहनपुर में ब्लॉक कर दिया। राइट। थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल खड़ा हो गया। राइट। अभी 3 दिन पीछे से यही लफड़ा चल रहा है। बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। शॉर्टली हम लोग चिट्ठी लिखा था सरकार को, अभी तक नहीं सुना। थोड़ा स्टेट में 5 स्टेट में अभी चुनाव है। वेस्ट बंगाल में नहीं है, असम में नहीं है, केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, पांडिचेरी में नहीं है। अभी 1 तारीख से उसको भी शुरू होता है। ऐसा ही बात अभी गुजरात सब जगह में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सब जगह में वहां भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब क्यों, जरूरत क्या है हमको, कुछ भी उसमें। अभी देखो, अभी पैनिक बटन VLTD जरूरत क्यों पड़ता है हमको समझ में नहीं आता है। हमारा ड्राइवर पैनिक बटन तो VLTD का एक हिस्सा है। वही VLTD का मेजर पार्ट है कि आपका वो हमको जरूरत क्या है। पैनिक इसमें करोड़ ऑफ रुपीस लूट रहा है। हमको बहुत बड़ा शॉक लग गया, ये लोग क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया। अगर VLTD का डेटा गवर्नमेंट के पास रहेगा तो वो फ्यूचर टाउन प्लानिंग और बहुत सी चीजों में काम आ सकता है। प्लस आपको भी बेनिफिट होगा, पता देखो चलेगा। सर, VLTD इसको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्या हो रहा है उसमें, कमर्शियल व्हीकल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ भी आप मॉनिटरिंग सेक्शन किया, ऐसा ही सत्यानाशन कर दिया। अभी नंबर प्लेट के ऊपर IND नंबर प्लेट होना करके सरकार आदेश किया, उसमें कितना करोड़ लूटा करके किसको भी मालूम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। जरूरत क्या पड़ा, इतना एक्सीडेंट हो गया, इतना चोरी हो रहा है, कहाँ भी मॉनिटर कौन किया उसको वो
फिक्स करने के बाद हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, इसमें बहुत बेनिफिट है। ट्रकर कहाँ भी एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत मालूम हो जाएगा, कहाँ भी ट्रक लूट करके कोई भी चोर लोग लेके चले गए तो तुरंत 2 मिनट में मालूम हो जाएगा कौन सा ट्रक। अभी तक इंडिया में एक सिंपल व्हीकल बोल दीजिए, सरकार उसको सब जवाब नहीं देता है। लेकिन जिस बाद में ये VLTD कमर्शियल व्हीकल की क्यों जरूरत है? हम क्या बोल रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल जाता है, किसी वास्ते ये फिक्स किया, क्या उसमें मतलब मिलने का क्या है वो लोग को? मेन ट्रैकिंग है कि ट्रक कहाँ चल रहा है, हमारा ट्रक कहाँ चलता है, उसको मॉनिटर करने वाला कौन है? गवर्नमेंट के पास कहाँ है बताओ? वो ये government सिर्फ करेगा झूठ है, कहाँ कर रहा है बोलो ना। फिक्स करके चले जाता है बस, फिक्स करता है 13,000, 14,000, 15,000 एवरी ईयर, 5,000 रुपए उसको पैसा दे रहा है। क्या लूटने का काम कर रहा है? उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। ये 10 दिन को अंदर बहुत बड़ा हंगामा होएगा। अभी आपको बताता है एंटायर कंट्री में किसका व्हीकल है वो लोग आके टोल में डाल के छोड़ देगा बस। हिट एंड रन केस में क्या सरकार को लेसन टीच किया हम लोग। बाद में हम लोग रिक्वेस्ट करके ट्रकर को नेक्स्ट बीजेपी सरकार आने के बाद बदली करके हम लोग हिट एंड रन केस निकालता करके वो निकाल दिया अमित शाह जी, ठीक है। ये क्यों हमको मालूम नहीं, एक दिन का ये ऑफिसर लूट रहा है, कौन लूट रहा है करके हमको मालूम नहीं है। इसमें जरूरत क्या है? ऑलरेडी हमारे पास मोबाइल फोन है, विद इन 2 मिनट में हमको मोबाइल फोन ऑन कर सकता है। 102 किया तो 2 मिनट में हो जाता है, 1093 किया तो नेशनल में आ जाता है। ऑलरेडी 2018 से फिक्स है ना हमारा व्हीकल में, अशोक लैंड व्हीकल में, टाटा में ऑलरेडी फिक्स करके भेजा ना। ये जरूरत क्या, उसको रिवील करता है बस। इसको जरूरत क्या पड़ रहा है उसमें? कोई भी जस्टिस है तो बोल दीजिए। आप बोल रहा है ठीक है निर्भया केस में हो गया, आपका गवर्नमेंट व्हीकल का क्यों फिक्स नहीं किया? कर्नाटक में अभी 25,000 गवर्नमेंट बस है, महाराष्ट्र में बस है, कोई क्यों फिट नहीं करता ये लोग? दिल्ली में गवर्नमेंट बस में क्यों फिट नहीं करता है? कहाँ फिट किया बताइए? राइट, फिट करो करके पैसेंजर को खाली लूट काम करने के लिए बस। ब्राइब, हाईएस्ट ब्राइब हो रहा है इसमें। इसको सरकार सीरियसली लुक आफ्टर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम आएगा। इसके ऊपर हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। अभी ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, आज भी डिसाइड किया मॉर्निंग में। अभी कोई से भी ये विद इन 10 डेज के अंदर ये निकाल नहीं है तो हम लोग बहुत बड़ा चक्का जाम करेगा, 100% इसमें डाउट नहीं है। ये अभी स्टेट गवर्नमेंट का में होगा, राइट? हाँ, चक्का 100% होगा। कौन सा व्हीकल में 101% कर्नाटका में शुरू कर देगा हम लोग, सब टोल में छोड़ देगा। बाद में तमिलनाडु में भी स्टार्ट हो जाएगा, 1 तारीख होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद वहां भी स्टार्ट हो जाएगा, पूरा एंटायर कंट्री होएगा। इसलिए हम लोग रुका। ये बाकी स्टेट का है ना, अभी 15 स्टेट का इंप्लीमेंट नहीं किया, वो इंप्लीमेंट करना दो। इंप्लीमेंट करने के बाद सब जगह में यही हो जाएगा। ये भी सुनने में आया है कि एक ऑल इंडिया लेवल पे भी स्ट्राइक की प्लानिंग चालू है। 101% स्ट्राइक प्लानिंग क्या है? टोल ई चलान 64,000 करोड़ ई चलान के ऊपर पेनाल्टी लगा के रखा है। इसमें आपका डिमांड क्या है? इसमें 23,000 करोड़ इसमें कलेक्ट किया, 40,000 करोड़ अभी पेंडिंग है। 63,000 करोड़ ई चलान के ऊपर, एक ई चलान के ऊपर। हमारा कर्नाटक में ई चलान नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, क्यों, व्हाट इज द रीजन बताइए ना। हम चोरी किया तो विद इन 2 मिनट्स में आपको मालूम हो जाता है। हाँ, ई चलान करने का उसमें क्या सिस्टम करना वो देख लिए ना। अभी कुछ भी नहीं देखता, फोटो खींच के भेज डालता है। एक ही गाड़ी का 10 जगह में पेनाल्टी। तो आपका इसमें डिमांड क्या है कि ई चलान को हटा देना चाहिए? ई चलान हमको जरूरत नहीं है, सरकार चेक करना रहे तो देखो हमको ई चलान में क्या चाहिए। ई चलान में आपको क्या चाहिए बोलिए ना। ई चलान में आपका टैक्स भरा, इंश्योरेंस है, ये सब चेक करने का आपका ड्यूटी है। चेक करो, नहीं करो बोलता नहीं, इमीडिएट चेक करो, मालूम हो जाता है। अच्छा, पेनाल्टी डालो, नहीं करो बोला नहीं। वो क्या प्रॉब्लम है उसको देखना पड़ेगा। एकदम उसका 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 फाइन करके भेजिए तो कैसा होता है? सच बताता है हमें, हमारा टैक्स नहीं है, उसको इमीडिएटली ई चलान दे दीजिए, पेनल्टी वहीं भर देगा हम लोग, आगे नहीं जाएगा। चार्ज देने का बाद फिर भी भर देगा। प्रॉब्लम क्या है आपको? टैक्स एक बात होगा, लेकिन जो रास्ते पे जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, जैसे रेड लाइट जंप करना, लेन कटिंग हो गया, ओवर स्पीडिंग हो गया, उसके भी तो ई चलान आ रहे हैं। वो अभी तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अभी एक व्हीकल जाने को टाइम में ओवरटेक करके उसको गाड़ी जाने को टाइम में वो देख के वो कैमरा में लगा देता, कैसा होता है? ह्यूमन इंटरेंस नक्को करको बताया था हम लोग, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज करो, फोटो करो, नहीं करको बोता नहीं है। ऐसा केस को हम लोग पीछे नहीं हटता है, भरो उसको, पेनाल्टी लगाओ। अभी लाइन जंप हो जाता है,
लाइन जंप हो जाता है, क्यों? प्रैक्टिकली चेक किया क्या? सामने गाड़ी जाता है, सामने गाड़ी ओवरटेक करना रहे तो लाइन से ऐसा लाइन आने को टाइम में कैमरा दिखाता है लाइन जंप हो गया करके, उसमें इमीडिएटली पेनाल्टी लग डालता है। बाद में हम सिर के ऊपर आता है 20,000, 30,000, 40,000, एक ही गाड़ी का 19 टाइम पेनाल्टी लगता है। ये क्या तमाशा, ये मालूम नहीं है हमको। तो आपका डिमांड होगा टू रिमूव ई चालान, ई चलान, रिमूव ई चालान, एम आई राइट? नहीं, रिमूव ई चलान। आप चेकिंग करने को टाइम में उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही हो तो फोटो ले लो, हमको जस्ट भी बताओ, हम पेनाल्टी भरने का रेडी है, उसमें क्या भी गलत नहीं बोलता हम लोग। ये क्या हमको चेक करना, नहीं चेक करना पड़ेगा ना आप लोग। हम गलत करता है, ठीक करता है, अभी इंश्योरेंस नहीं है, आर्ज नहीं है, टैक्स नहीं है, ऐसा चलेगा तो क्या होता है? इमीडिएटली चेक करो, हमको उसको क्या भी हम लोग नहीं बोलता है। ये चलान मतलब फोटो खींचो, उसमें क्या प्रॉब्लम है देखो, उसमें हम भरने का तैयारी है। मतलब आपको ई चालान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली उसका जो यूज है वो सिस्टम करेक्ट होना चाहिए। सिस्टम करेक्ट चलना चाहिए, हम विरोध नहीं करता है, राइट। उसके सिस्टम ठीक कर दीजिए, ई चलान में सिस्टम ठीक कर दीजिए। एक बात बोलता है, ओवर रोड बहुत बड़ा अफेंस है। कंटेनर के ऊपर आज तक इतना लेटर देकर भी सरकार क्यों उसको नोटिस नहीं देता मालूम नहीं है। कंटेनर लोड करके बेचता है ओवर रोड, उसको पेनलाइज करना नहीं हमको करना, उसको कर दीजिए ना। हम सिस्टम के ऊपर पिछले रहता है, डिस्कस करो, सरकार का पास बात करने के लिए हमको क्या प्रॉब्लम है? बिफोर VLTD हमको पूछना था, क्या करना करके बोलना था, कमर्शियल व्हीकल का हटा दिया करके बता दिया, अभी इमीडिएटली हमको ऐसा लगा दिया, क्या करना हम लोग? अभी कैसा चला सकता है? क्या तमाशी है? नंबर 1। नंबर 2, ऐसा ही पीछे स्टिकर आया था, 3,000 रुपया स्टिकर इंट्रोड्यूस किया, वो भी पैसा लाखों रुपया पैसा दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, अभी भी तमिलनाडु में लूट रहा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट में अभी भी पैसा लूट रहा है। कर्नाटक में स्टिकर नहीं है, हम लोग ओरिजिनल स्टिकर डाल के जाता है, बिरला 3M स्टिकर डाल के जाता है, बताता है, वो लोग 4,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। क्या है मतलब? ये हमारा पैकेट से पिट पैकेट मारने का काम कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, हम क्या करना? He has been president of various associations in Maharashtra, including the prestigious Bombay Goods Transport Association, and then went on to become the president of AIMTC. However, he did not end his service to the trade with that post. He still continues to take up industry issues at various forums. One of the issues in Maharashtra was the penalty being levied for not having a cleaner in the truck. He took up this issue persistently with the Maharashtra government and got a notification removing that mandate. Telling us more about the notification and its fine print is Malkeet Singh Bal, former president AIMTC. मलकीत जी, हाल ही में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग द जो ड्राइवर एक मैंडेटरी था वो हटाने का, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस एंड व्हाई द नीड फॉर दिस? इसका बैकग्राउंड क्या है? देखो, बहुत लंबे समय से ये एक वहाँ पर कानून था कि आपको क्लीनर जरूरी, अटेंडेंट या क्लीनर या हेल्पर जो भी उसको नाम दे, लेकिन वो होना बहुत ज़रूरी है। राइट। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या हमारे उद्योग में जो ड्राइवर्स की है, तो क्लीनर तो कोई गाड़ी पे है नहीं, ना ही मिलते हैं पूरी कोशिश करने के बाद। लेकिन जो एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, वो जो हमारे जो प्रैक्टिकल इश्यूज थे उसको ना समझते हुए उन्होंने एक रेवेन्यू जनरेशन की एक मशीन तैयार कर ली थी, जहाँ पर कि उसमें था कि अगर क्लीनर नहीं है गाड़ी पे तो 1,500 रुपये का आपको जुर्माना लगता है। राइट। तो जो गाड़ियाँ खासकर जो मुंबई में, नवी मुंबई में और जो पूरे महाराष्ट्र में थी, उसको जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो फ़ोटो खींचकर क्लीनर नहीं है 1,500 रुपये का चालान ऑनलाइन भेज देते थे। और कई वैसे इंसिडेंट्स देखे गए कि मल्टीपल चलान्स हुए। जैसे गाड़ी ने फॉर एग्जांपल मानकुर से अगर शिवड़ी तक जाना है तो एक मैं बोलूँगा कि पांजरापोल सर्कल है, वहाँ पर चलान, आगे गया तो साइंस सर्कल पर चलान, तो जहाँ मिलते शिवड़ी वहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं वो चलान करते थे। वैसे कई मल्टीपल चलान होते थे और एक एवरेज हमने जब भी वर्किंग की तो जो खासकर गाड़ियाँ सिटी में घूमती हैं उनको लगभग 7,500-8 हज़ार के पर मंथ के 9-10 हज़ार रुपये के नुकसान जुर्माने आते हैं। राइट। और बहुत बड़ा एक तो मेंटल हरासमेंट थी, एक ड्राइवर के लिए भी, एक मालिकों के लिए भी, और रेवेन्यू लॉस भी बहुत बड़ा था।
ये जब मुद्दा हमने बहुत लंबा टाइम इसको लगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी थी। जब भी हमने प्रपोज किया तो जब डिस्कशन हुई, हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे विवेक भिवनवर जी, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप पे प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रपोज करने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, राइट। जो कि लॉजिकली हो, लीगल हो। और तभी रोड सेफ्टी का बहुत इम्पोर्टेंस चल रहा था, तो कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी का इम्पैक्ट देखते हुए तो काफ़ी डिस्कशन हुई, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। तो ये होगा क्या, टेक्नोलॉजी है। आज हमने यही दिया था कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आज क्लीनर की आवश्यकता नहीं है। आप ड्राइवर स्टीयरिंग पे बैठे पूरी गाड़ी को मॉनिटर कर सकता है, राइट। और अलर्ट्स भी हैं, जीपीएस भी हैं। वो पुराना ज़माना नहीं है, और आपने ये कानून तब का बनाया जब ये चीज़ें नहीं थी गाड़ी में। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, उसकी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, तो उन्होंने एक प्रपोज किया या डिस्कशन में निकला कि ड्राइवर असिस्ट सिस्टम लगाया जाए। यानी कि आज देखते हैं कि आम गाड़ियों में कैबिन में कैमरे लगे हुए हैं, जो कि आज मतलब कि बहुत ज़रूरी हैं एज़ फार एज़ मतलब कि सेफ्टी के कारण। ये एक कंप्लायंस बन चुकी है कॉर्पोरेट्स की। और तब हमने कुछ पहले तो था क्या, स्पॉन्टेनियस हमारा रिएक्शन था कि एक एडिशनल बर्डन हमारे ऊपर बढ़ जाएगी। तो हमने कुछ अच्छे जो सूझवान इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई जो कॉस्ट है इतनी बहुत नहीं है, कि हमने लगभग हर एक फ्लीट में लगाए हैं जिनकी 100, 200, 300, 400 गाड़ियाँ हैं, और 4,500 का वन टाइम इसकी कॉस्ट है, और इसमें काफ़ी लाभ भी हैं। तो हमने उनको प्रपोज कर दिया वहाँ पर ही बैठे बैठे कि वी रेडी टू, आप इसको प्रपोज करें। तो ड्राइवर असिस्ट सिस्टम है, 360 डिग्री है, तो वही इको सिस्टम लगाने के कारण, और ये फाइल मैं बताता हूँ कि लगभग 3-4 बरस हो गए। हमने ये पहले काफ़ी, आप गवर्नमेंट से कोई नोटिफिकेशन निकालना हो, जब भी गवर्नमेंट की मर्जी हो तो 24 घंटे में हो जाता है, जब उनकी नहीं हो तो उसमें कई सालों लग जाते हैं। तो हमने ये फाइल वहाँ से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मूव कराई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास, और इस तरह का नोटिफिकेशन लॉ एंड जुडिशरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रहता है। तो लॉ एंड जुडिशरी के पास में गई, तो वहाँ पर एक फ़ाइल जाने के बाद में हमने बहुत परस्यू किया, कई तरह के वहाँ पर इलेक्शंस आई, अधिवेशन आ गए, हम इसमें बिजी हैं, हम बजट सेशन में बिजी हैं। अंत में उन्होंने एक उसमें गलती निकाल दी कि ये जो है, इसमें जो आपने प्रपोजल भेजा है, इट इज़ ऑन द लेंथ, इट शुड बी ऑन द वेट एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो फाइल दोबारा रूट होकर मंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास दोबारा गई, तो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट करने के बाद में फिर वो राइट वही सिस्टम से रूट होकर लॉ जुडिशरी में आई, तो वहाँ से उन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के लिए अप्रूवल दी, जिसकी की ऑब्जेक्शन सजेशंस है कि मंगानी पड़ती है, 15 दिन का समय दिया गया। उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आई, कुछ सजेशन आई, लेकिन दिस वाज ओवर रूल्ड बाय द डिपार्टमेंट, एंड अगेंस्ट द फाइल वर सेंट टू द चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, और फिर बाद में वो मंत्री के पास, फिर वो जाके पे अपना ये हमारे लॉ जुडिशरी में गई, वहाँ से अप्रूव होने के बाद में फाइनल नोटिफिकेशन के लिए फ़ाइल पड़ी हुई थी, जो कि फ़ाइनल, अफसोस से कहना पड़ता है कि फ़ाइनल नोटिफिकेशन निकालने में भी उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया। लेकिन अंत यही कहूँगा कि एक राहत, एक खुशी की बात है, और बहुत बड़ी हमारी जो एकता है उसका प्रतीक है, और जो लगातार हम पेशेंस के साथ में इस फाइल को परस्यू करते रहे, और सभी ने हमारा साथ दिया, और नोटिफिकेशन 8 अप्रैल को आ गया है। और इससे बहुत बड़ी राहत हमारे जो ट्रक ऑपरेटर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, ऑनर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनको बहुत बड़ी ये राहत मिलेगी। मलकी जी, जो मैं जो नोटिफिकेशन पढ़ा मैंने, उसमें था कि यू हैव टू हैव अ 360 डिग्री कैमरा व्यू, जो एक कैमरा से तो नहीं होगा, दिस रिक्वायर्स मल्टीपल कैमरास। एंड जो मैंने हाल ही में फाइंड आउट किया, एक बहुत बेसिक कैमरा सिस्टम अगर आप देखें तो इट इज़ कॉस्टिंग एनीवे बिटवीन 10 to 12,000 अ गुड वन। अगर हम 360 की बात करें तो दैट इज़ एन एडिशनल कॉस्ट, वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है। डू यू थिंक फ्लीट ओनर्स या स्पेशली जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं, विल दे बी रेडी टू पे दिस कॉस्ट? बिकॉज आपने देखा है छोटा सा भी कुछ कॉस्ट एस्केलेशन होता है, देयर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एक्सपेंसेस। देखो, ये तो बैकफायर हमें हुआ है कि कॉस्ट लगेगी, लेकिन आप
हर महीने अगर 10,000 का फाइन भरते हैं, साल का 1,20,000 भरते हैं, तो वन टाइम अगर 15 से 20,000 अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बहुत बड़े लाभ हैं आपको। बेनिफिट्स आपने- ऑफ कोर्स है, नो डाउट। देखिए सुनिए मेरी बात, इससे इंसिडेंट्स हुए हैं, कहीं पर एक गाड़ी को पीछे के आके किसने मार दिया और नेचुरली बड़ी गाड़ी के ऊपर FIR होनी है, चालान होना है, गलती वो ड्राइवर की निकाली जानी है। तो जब वो ऑपरेटर ने वहाँ पर जो कैमरे लगे थे वहाँ से एविडेंस दिए कि मैं इस तरह जा रहा था, पीछे से आके रैंप किया और रैंप होने के बाद में व्यक्ति मर गया है, तो ये एविडेंस हुआ तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। डू यू थिंक कहीं ना कहीं दिस में एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज? मैं तो बोलूँ एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं इससे? देखो, अभी जैसे ही अभी हमने कोई प्रेजेंटेशन देखी थी, उसने बताया है कि उसकी फ्लीट में लगी है तो 55% उसके एक्सीडेंट कम हुए हैं। तो इसमें एक्सीडेंट कम होंगे और जो गलत हमारे ऊपर जो थोप दिए जाते हैं जिसमें ड्राइवर की गलती नहीं होती है, गाड़ी गलती नहीं होती है, तो उससे भी हमें राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरियों के चक्कर कम करने पड़ेंगे, कम मारने पड़ेंगे। बट डू यू थिंक पीपल विल एक्चुअली इंस्टॉल दिस? बिकॉज अभी तक जब से नोटिफिकेशन आया तब से कोई सेल्स इन चीज़ों की बढ़ी नहीं है। देखो, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे बढ़ेगी और ये देखेंगे कि आज एक कंप्लायंस है रोड सेफ्टी के माध्यम से भी, और मैं तो ये कहूँगा कि हमें इसको अडेप्ट करना चाहिए फॉर आवर सेफ्टी एंड फॉर रोड सेफ्टी एंड टू रिड्यूस द एक्सीडेंट्स। व्हाट इज योर फ्लीट साइज? आई हैव 200+। कितनी गाड़ियों में सिस्टम है ये आपके? देखो, जो तो गाड़ियाँ मेरी रूट पे चलती हैं उसी में सिस्टम है, जो गाड़ियाँ लोकल है जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर ये सिस्टम हमने अभी अडेप्ट नहीं किए हैं, लेकिन ग्रेजुअली वी विल अडेप्ट। But you have a cleaner on those vehicles? No, nothing. So now you will be requiring this system. Yeah. तो 100 trucks into X amount. Are you जो willing भी to अमाउंट invest हो that ना much? दे तो क्या, तो You are okay gradually- with that? देखो, जो नई टेक्नोलॉजी है आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी आती है तो बेहतरी के लिए आती है, उसके कहीं ना कहीं एडवांटेज आपको होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे को करना ही नहीं है, गाड़ी की कीमत कितनी थी पहले, आज कितनी है? Absolutely. तो आज भी तो गाड़ियाँ बिक रही हैं, खरीद लें लोग। बिल्कुल। जो गाड़ी पहले 20 लाख में थी वो 22, 25, 30, 35, 40, 45 की हुई, आज भी तो गाड़ियाँ बिक ही रही हैं। क्योंकि जी, सिंस आपने गाड़ियों के सेल्स की बात की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है कि जब हम ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं, कल भी हम बात कर रहे थे काफ़ी से, तो कह रहे थे कि यार बिज़नेस नहीं है, हमारे EMI भी मुश्किल से निकल पा रहे हैं, GST बेनिफिट के चक्कर में, इनपुट क्रेडिट के चक्कर में थोड़ा बहुत जो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ आवर बिजनेस। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, लास्ट ईयर ट्रक सेल्स वर एट अ रिकॉर्ड हाई। हु इज बाइंग दीज ट्रक्स? देखो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी दैट इज 33%। रिक्वायरमेंट है, वो 33% वहाँ पर है। LCV में काफ़ी है। वी आर टॉकिंग ओनली MNHCV फॉर नाउ। हाँ, तो उसमें बात वैसी है कि आप अगर सोचेंगे कि मैं गाड़ी लेके और गाड़ी का रेवेन्यू से ही अपनी इंस्टॉलमेंट भरूं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आज गाड़ियां मेरे ख्याल से वही बना रहे होंगे जिसके पास अगर 5 गाड़ी है, उसमें कम से कम 3 गाड़ी फ्री है तो 2 गाड़ी लोन पे होगी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। तो ये तो क्या एक्सपेंशन है, छोटे की छोटी एक्सपेंशन है, बड़े की बड़ी है। तो ग्रोथ तो ही होगा जो गाड़ियाँ हम बनाते रहेंगे। गाड़ी कभी आपको स्क्रैप करनी पड़ती है, कभी पुरानी गाड़ियाँ बेचनी पड़ती है, रीसेल में भी गाड़ियाँ हैं तो बिकती भी काफ़ी हैं। लेकिन हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं, दैट इज ऑन अ गुड ट्रैक, वॉल्यूम ऑफ गुड्स बढ़ रहा है। डू यू थिंक द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज इन गुड शेप ओवरऑल? देखो, ये हमारे को कहीं ना कहीं वी हैव टू मेक अवर माइंडसेट दैट वी आर डूइंग गुड, द चैलेंजेस आर देयर, वी हैव ओवरकम दिस चैलेंजेस, और आगे ग्रोथ तो रहनी है। जिस तरह से एक्सपेंशंस आ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ग्रोथ तेरे से इकोनॉमिक ग्रोथ इज डेफिनेटली देयर, उसको तो कोई रोकने ही नहीं है, तो सारा कुछ ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही होगा। एग्जैक्टली। तो हाउ इज ट्रांसपोर्ट गोइंग टू शेप इटसेल्फ? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड देयर? बिकॉज छोटे वालों की हालत काफ़ी ख़राब लग रही है एज ऑफ नाउ। देखो, मैं तो उनको यही एजुकेट करता हूँ कि आप एक छोटे वालों के लिए, जो हमारे भी कम्युनिटी के काफ़ी छोटे ऑपरेटर हैं जो कि धीरे धीरे इस रेट से बाहर हो रहे हैं, मैं बोला आप एजुकेट करिए, अपने बच्चों को समझाइए, उनको एग्जाम्पल दीजिए कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से मतलब क्या है, और बिजनेस मॉडल है, आपने किस तरह अपना चलाना है, सबका इंडिपेंडेंट है, बट देयर इज द ग्रोथ एंड ग्रोथ विल बी देयर।
how do you think is the future of this industry 5 years from now? क्योंकि इतने बदलाव आ रहे हैं, alternate fuels है, infrastructure better हो रहा है, government के rules strict होते जा रहे हैं, आपके चालान बढ़ते जा रहे हैं. Amongst all this, how is the future? मैं तो देखो शुरू से ही पॉजिटिव हूँ. फ्यूचर इज देयर वाज अ गुड फ्यूचर इन द ट्रांसपोर्ट कंपनी. एट प्रेजेंट द फ्यूचर इज आल्सो गुड एंड फॉर फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा है. Thank you, Mankit ji. थैंक यू. The road transport industry is under a lot of stress due to e-challans. There have been numerous cases where a truck running in one state gets a challan issued in another state. There is definitely glitches in the system that needs to be addressed, and proper process needs to be followed as prescribed in the system. However, with the government not addressing any of the issues, the transporters are resorting to their last resort. However, with business dynamics changing, we are not sure how the industry will react to this, especially the youngsters and fleet owners who have to pay their EMIs and fulfill contractual obligations. However, we hope that the government sees some sense in the concerns of the industry and discusses the same. We will keep you posted on the developments, so stay tuned to the channel. We will be back again next week with another interesting conversation. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.